السلام علیکم ویورز، آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ چلیں تو پڑھتے ہیں۔ دنیا کا فرسٹ کمپیوٹر اباکس تھا، جس کو ہم اباکس کے نام سے جانتے ہیں۔ میسوپوٹامیانس انوینٹیڈ دا فرسٹ ورژن آف این اباکس۔ میسوپوٹامیانس نے اس کو بنایا تھا۔ فرسٹ ورژن جو تھا اباکس کا وہ 2700 BC ٹو 2300 BC تک چلا، مطلب 400 سال تک چلا یا اس کے بیچ میں بنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اباکس کمپیوٹر کیسا دکھتا تھا۔ تو یہ ہے اباکس کمپیوٹر، اس میں حساب وغیرہ کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اس کو آگے بھی ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ ہسٹری آف کمپیوٹرز میں اباکس کمپیوٹر کو، یہ بس بیسک نالج آپ کو دینی تھی۔ فل فارمز، اب ہم بیسک فل فارمز پڑھیں گے کمپیوٹرز کے۔ کمپیوٹر ورڈ ہوتا ہے کمپیوٹر، ان کا فل فارم کیا ہوتا ہے؟ کامن آپریٹنگ مشین، پارٹیکولرلی یا پرپزلی یوزڈ ان ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل ریسرچ۔ اس کو ہم کامن آپریٹنگ مشین پارٹیکولرلی یا پرپزلی یوزڈ ان ٹیکنیکل اینڈ ایجوکیشنل ریسرچ کمپیوٹر کا فل فارم ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ جو بیسک چیز ہے وہ ہے سی پی یو۔ کمپیوٹر میں ہم سی پی یو کا نیم سنتے آ رہے ہیں۔ سی پی یو کا فل فارم ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ سی پی یو کا فل فارم ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اے ایل یو۔ اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ نیکسٹ ہے ایس ایس ڈی سولڈ اسٹیٹ ڈرائیو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سی ڈی کمپیکٹ ڈسک۔ یہ نیم ہم کمپیوٹر جو بھی پڑھتا ہے یا جس کا کمپیوٹر کے ساتھ تھوڑا بہت ریلیشن ہے اس کو پتا ہوگا کہ یہ نیم بار بار آتے رہتے ہیں کمپیوٹر میں۔ ڈی وی ڈی ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک، یا اس کو ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک بھی ہم بولتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سی یو کنٹرول یونٹ۔ ریم رینڈم ایکسیس میموری۔ روم کا فل فارم ہے ریڈ اونلی میموری۔ ایچ ڈی ڈی کا فل فارم ہے ہارڈ ڈسک ڈرائیو۔ یہ میں نے غلطی سے آگے پیچھے تھوڑا لکھ دیا ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو۔ اس کے بعد ہے پی سی پرسنل کمپیوٹر۔ نیکسٹ ہے آئی او ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ۔ ایل سی ڈی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ یو ایس بی کا فل فارم ہے یونیورسل سیریل بس۔ نیکسٹ ہم فل فارم پڑھیں گے نیکسٹ سلائیڈ میں ای میل۔ ای میل کا فل فارم ہے الیکٹرانک میل۔ جی میل کا فل فارم ہے گوگل میل۔ ہم ای میل اور جی میل دونوں کا ڈفرنس آگے انشاءاللہ ویڈیوز میں جانیں گے۔ میں اس ویڈیوز کی لنک یہاں دے دیتا ہوں۔ بایوس بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ او ایس آپریٹنگ سسٹم۔ ایچ ڈبلیو ہارڈ ویئر۔ ایس ڈبلیو سافٹ ویئر۔ اس کے بعد ہم تھوڑے بہت کوشچن کور کرتے ہیں۔ ہو از اے ڈیولپر آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کس نے بنایا تھا؟ جس نے کمپیوٹر بنایا تھا اس کا نیم ہے چارلس بیبیج، جس کو ہم فادر آف کمپیوٹر بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کمپیوٹر ورڈ مینس۔ کمپیوٹر کے ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کمپیوٹر ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کمپیوٹر جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں حساب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹ مطلب حساب کرنا، جیسے کیلکولیشن، جیسے انگلش ہے ہمارے پاس، انگلش میں ہم کیلکولیٹ مطلب حساب کرنا، اردو میں ہم حساب کرنے کو حساب کرنا کہیں گے، انگلش میں ہم کیلکولیٹ کہیں گے حساب کرنے کو، اور لاطینی زبان میں ہم کمپیوٹ کہیں گے حساب کرنے کو۔ تو کمپیوٹر لاطینی زبان کا ورڈ ہے۔ کمپیوٹ مطلب حساب کرنا، کمپیوٹر مطلب حساب کرنے والا، کیلکولیٹ مطلب حساب کرنا، کیلکولیٹر مطلب حساب کرنے والا۔ تو کمپیوٹر ورڈ مینز حساب کرنا۔ تو کمپیوٹر ورڈ مینز حساب کرنے والا۔ ہو از اے مدر آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی ماں کس کو کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی ماں ہم ایڈا لولیس کو کہتے ہیں۔
कंप्यूटर की माँ हम एडा लवलेस को कहते हैं, जिसका पूरा नाम है लेडी अगस्टा एडा लवलेस। ये दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर भी थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? हाउ वर्क्स कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है? या कंप्यूटर डेफिनेशन, कोई कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ, या कंप्यूटर क्या है, या कंप्यूटर कैसे काम करता है। इन तीनों सवालों का मैं एक ही आंसर दूंगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर गैलरी में आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर तो एक डेटा है ना। मोबाइल जो है वो भी एक किस्म का कंप्यूटर है, आगे हम पढ़ेंगे। तो मोबाइल के अंदर गैलरी होती है, गैलरी के अंदर अगर पिक्चर है तो वो एक किस्म का डेटा है। कौन सा डेटा है? अगर मोबाइल में चार्जर होगी तो वो पिक्चर शो होगी मोबाइल के जो अंदर है गैलरी में। अगर चार्जर नहीं होगी तो शो नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अगर बिजली होगी मोबाइल में तो पिक्चर शो होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ भी कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली डेटा को प्रोसेस करने वाली मशीन है। डेटा यहाँ किसको कहा गया है? इस तस्वीर को, इस वीडियो को जो आप यूज करते हैं गैलरी में। तो अगर मतलब कंप्यूटर बिजली पे चलने वाली डेटा को प्रोसेस करने वाली मशीन है। अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगी, बिजली होगी तो वो डेटा चलेगी। आगे बढ़ते हैं, विच एक्सेप्ट्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट। जब हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है अपनी तरफ। एंड प्रोसेस इट, फिर उस पर प्रोसेस करने लगता है, मतलब उस पर अमल करने लगता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट इंफॉर्मेशन, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो ऑर्डर करता है, मतलब मशीनरी जो उसके अंदर है, सीपीयू वगैरह, उसको ऑर्डर करता है आउटपुट देने को, आउटपुट इंफॉर्मेशन देने को कि अब क्या बना आपके सवाल का। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्लास है पूरी, वहाँ से मैंने किसी को कहा बेटा अली को जानते हो, वो क्या कहेगा? हाँ या नहीं। जैसे मैंने उसको अली कहा, अली को जानते हो, वो थोड़ा घबरा गया कि सर कौन से अली की बात कर रहा है, मतलब वो सोच रहा था कौन से अली की बात कर रहा है। जैसे मैंने उसको कहा अली को जानते हो, ये मैंने उसको इनपुट दिया, वो सोच रहा था कौन सा अली, या मैं किसी अली को जानता हूँ या नहीं। जैसे उसने सोचा, फिर उसने हामी भर के मुझे जवाब दिया हाँ जानता हूँ, या ना में जवाब दिया मैं नहीं जानता। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करता है कि क्या ये डेटा है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया कि ABC फोल्डर है कंप्यूटर के अंदर, वो पहले लोडिंग करेगा। ठीक है, लोडिंग करने के बाद है तो दिखाएगा, नहीं है तो एमपीटी फाइल्स दिखा रहा होगा। इसका मतलब है पहले मैंने इनपुट दिया, फिर उस पर प्रोसेस हुआ, फिर मुझे आउटपुट दिया कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर की तस्वीर है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? बेसिक पार्ट्स जिस पे कंप्यूटर चलता है, जिसमें कंप्यूटर का पहला पार्ट है माउस, दूसरा पार्ट है कीबोर्ड, तीसरा पार्ट है मॉनिटर, चौथा पार्ट है सिस्टम यूनिट। ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ठीक है, ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर, माउस और सीपीयू आगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलेंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स ये हैं। कोई कोई कहता है प्रिंटर भी तो सर पार्ट है। प्रिंटर पार्ट है लेकिन वो बेसिक पार्ट नहीं है। अगर प्रिंटर नहीं हो तो भी कंप्यूटर चल जाता है। ठीक है, बेसिक पार्ट मतलब ऐसे पार्ट जो कंप्यूटर में नहीं हो तो कंप्यूटर आसानी से नहीं चले। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास माउस नहीं है, कंप्यूटर वैसे चलेगा तो सही लेकिन थोड़ा मुश्किल चलेगा। अगर प्रिंटर नहीं है तो फिर भी कंप्यूटर जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से फायदे हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से नुकसान हैं। जैसे कंप्यूटर के फायदे हैं, मतलब
किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी ज़रूर होते हैं। आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से फ़ायदे हैं? तो कंप्यूटर का पहला फ़ायदा है स्पीड। कंप्यूटर का फ़ायदा जो है स्पीड। स्पीड का मतलब देखें, अगर कोई ह्यूमन हो, कोई इंसान हो, उसको मैं कहूँगा 2 और 2 वो कहेगा 4, मैं कहूँगा 4 और 4 वो कहेगा 8। जैसे हिसाब बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होता जाएगा। लेकिन कंप्यूटर स्लो नहीं होता, वो प्रॉपर एक ही स्पीड में चलता है। तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है। या जैसे मतलब इंसान थकता है कोई काम करके, ये कंप्यूटर नहीं थकता। उसके बाद नेक्स्ट जो कंप्यूटर का फ़ायदा है वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। इंसान झूठ बोल सकता है, कंप्यूटर नहीं बोलता। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर को हम इनपुट ही गलत देंगे तो फिर आउटपुट गलत मिलेगा। मैंने कंप्यूटर को कहा 2 और 2, कंप्यूटर कहेगा 4। हाँ, कोई मुझे कहे 2 और 2, मैं कहूँगा 5। मैं कह सकता हूँ, कंप्यूटर नहीं कह सकता। हाँ, अगर हम इंसान उसे गलत आउटपुट दें 2 और 3 तो फिर वो 5 कहेगा। लेकिन कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं कर सकता। उसके बाद है थर्ड जो एडवांटेजेस है, कंप्यूटर का एडवांटेज है वो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर का जो फ़ायदा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है वो बहुत बड़े काम की है, ये हमारे फ़ायदे की है। कैसे फ़ायदे की है? पहले देखिए, हम किताबें या बुक्स या रिकॉर्ड्स अपने रूम्स में रखते थे, बड़े बड़े रूम्स भर जाते थे। अभी कंप्यूटर की छोटी यूएसबी लो, आप सारी डेटा उसमें डाल के जेब में डाल दो। ठीक है, तो कंप्यूटर की ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बड़े काम की है। इसके बारे में भी हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे डिटेल से। उसके बाद कंप्यूटर का चौथा फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन। अगर कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल नहीं होती, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। अगर मोबाइल नहीं होती तो हम यूट्यूब कैसे चलाते? कंप्यूटर नहीं होता तो हम यूट्यूब कैसे चलाते? अगर यूट्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मतलब हम जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, अगर मोबाइल या कंप्यूटर नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते? मतलब जैसे मोबाइल आई तो हमारे पास ये एडवांटेज भी आया कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। कंप्यूटर के ज़रिए हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा चाँद क्या है? तो मुझे तो पता नहीं है चाँद क्या है, तो मैं चाँद के बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। कंप्यूटर या मोबाइल पे जाके गूगल क्रोम या कहीं भी मैं सर्च करूँगा मून या चाँद, तो उसके बारे में सारी डिटेल निकल आएगी, क्या है, कैसे है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब ये रिसर्च पूरी आ जाएगी। कंप्यूटर के ज़रिए हम रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के ज़रिए हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, मतलब मुलाजमत कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। कैसे मुलाजमत? कंप्यूटर के ज़रिए क्या हम कंप्यूटर सीख के जो जॉब करते हैं यही मुलाजमत? ऐसी मुलाजमत नहीं। जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, दुबई में एक कंपनी है, मैं उस पर काम करता हूँ ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए। अगर कंप्यूटर या ये मोबाइल नहीं होती तो मैं ऑनलाइन दुबई में काम कर सकता हूँ पाकिस्तान में बैठ के। तो यही है, कंप्यूटर के ज़रिए हम मुलाजमत कर सकते हैं किसी भी मुल्क में या दुनिया में कहीं भी। तो ये एक फ़ायदा है, ये कंप्यूटर के आने से हुआ। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला पहला जो नुकसान है वो है हेल्थ इशू। कंप्यूटर का पहला नुकसान हेल्थ इशू है, मतलब सेहत की खराबी। ये कैसे? जैसे हम पूरा दिन मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमारी आँखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं या हमें सर में दर्द हो जाता है। तो ये है सेहत का इश्यू, कंप्यूटर दे सकता है, क्योंकि सारा दिन यूज़ करने से कभी-कभी हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से कोई हमसे बात करता है तो हम उसके साथ सही तरीके से बात भी नहीं करते, गुस्सा करते हैं ऐसे-वैसे, तो ये कंप्यूटर की वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यू। नेक्स्ट है वायरस। कंप्यूटर के ज़रिए वायरस जो है वो हमारे माहौल के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक। अब क्वेश्चन बनता है, वायरस क्यों नुकसानदायक है हमारे लिए? तो देखें, एक यूएसबी है, उसमें मेरी पुरानी ओल्ड पिक्चर्स पड़ी थी मेरी फैमिली के साथ। तो अब क्या हुआ, वायरस ने क्या किया, वायरस आ गया उस यूएसबी में, मेरी ओल्ड पिक्चर्स सारी जल गई, वायरस आ गया। तो अब नुकसान ये हुआ, मेरी यादगिरी जो पुरानी यादगिरी थी वो सारी मिट गई, तो ये नुकसान हुआ। हैकिंग, कंप्यूटर के ज़रिए हैकिंग होती है, ये भी नुकसान है।
جیسے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں میرے 500 یا 5000 پڑے تھے، کسی نے وہ ہیک کر لیے، میرے 5000 نکال دیے. تو اگر کمپیوٹر نہیں ہوتا تو شاید وہ 5000 میرے جیب میں ہوتے یا میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپیوٹر ہے تو اکاؤنٹ ہے، اگر کمپیوٹر نہیں ہوتا تو اکاؤنٹ نہیں ہوتا. مطلب کمپیوٹر آیا، ہم نے اکاؤنٹ بنایا اور ہیک ہو گیا. تو کمپیوٹر کے ذریعے ایسے چوری بھی ہوتی ہے آن لائن، چور پہ نظر ہی نہ پڑے. نیکسٹ ہے اسپریڈ آف وائلنس، مطلب غلط افواہیں. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ویسے ہو گیا، مطلب غلط افواہیں چلتی ہیں. کمپیوٹر اگر نہیں ہوتا تو یہ غلط افواہیں آن لائن نہیں چلتی. یا کبھی کبھی آ جاتا ہے فلاں بندہ مر گیا، تو یہ غلط افواہیں ہیں. سائبر کرائمز، کمپیوٹر کے ذریعے سائبر کرائمز بھی ہوتے ہیں. سائبر کرائمز مینس کوئی ایک بینک ہے، سائبر مطلب مینس بڑا، کرائمز مطلب جرم، بڑی جرم. تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بینک ہے، آن لائن اس پہ چوری ہو جاتی ہے یا آن لائن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ نکال دی جاتی ہے. اگر کمپیوٹر نہیں ہوتا تو ایسے نہیں ہوتا، آن لائن مطلب چوری نہیں ہوتی. تو سائبر کرائمز آن لائن جرم، بڑے جرائم کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہے نیگیٹو ایفیکٹ. نیگیٹو ایفیکٹ مطلب غلط افواہ. ٹھیک ہے، نیگیٹو ایفیکٹ، ماحول میں نیگیٹو باتیں پھیلائی جاتی ہیں یا گالم گلوچ کیا جاتا ہے. اگر کمپیوٹر نہیں ہوتا تو ایسے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کمپیوٹر نہیں ہوتا تو فیس بک یا کوئی اور پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہوتا ہی نہیں تو نیگیٹو ایفیکٹ بھی نہیں پڑتا.